محترم ناظرین السلام علیکم۔ روزٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کاماریڈی نصر آباد میں تلنگانہ یوم تاسیس جشن تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھ رام سنیواس ریڈی کا خطاب۔ تحریک تلنگانہ و ترقی تلنگانہ میں صحافیوں کا اہم رول۔ گنڈارام میں صحافیوں کے لیے مختص کردہ اراضی پر MLC کے کویتا MLA واجویڈی گوردھن MLA بیگالا گنیش گپتا نے کیا کاموں کا آغاز۔ MLA بیگالا گنیش گپتا کی دلچسپی کے سبب اقلیتی علاقوں میں برقی سربراہی کا مسئلہ ہوا ختم۔ وعدے کے مطابق اندرون 3 یوم ارسا پلی برقی سب اسٹیشن پر مزید PTR کا اضافہ۔ تنصیبی کاموں کا آج سے ہوا آغاز۔ بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 5 بجے تک ان علاقوں میں برقی سربراہی رہے گی بند۔ CM KCR کی قیادت میں دیہی علاقوں میں آئی ترقی۔ ڈچپلی میں منعقدہ تلنگانہ یوم تاسیس جشن سے MLC کے کویتا کا خطاب۔ BRS دور حکومت میں ہی عوام کی سہولت میں ہوا اضافہ۔ ہر فرد کے لیے سرکاری اسکیمات موجود۔ PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی کا تلنگانہ جشن تقریب سے خطاب۔ تلنگانہ میں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں تک BRS کی اسکیمات نہ پہنچی ہو، اور ایسا کوئی گھر نہیں جس نے اس اسکیمات سے استفادہ حاصل نہ کیا ہو۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل احمد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ MLA بیگالا گنیش گپتا کی دلچسپی کے سبب اقلیتی علاقوں میں برقی سربراہی کا مسئلہ ہوا ختم۔ وعدے کے مطابق اندرون 3 یوم ارسا پلی برقی سب اسٹیشن پر مزید PTR کا اضافہ۔ تنصیبی کاموں کا آج سے ہوا آغاز۔ بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 5 بجے تک ان علاقوں میں برقی سربراہی رہے گی بند۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا، جو شہر نظام آباد کی ترقی و فلاح کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں، صرف 2 یا 3 دن قبل BRS اقلیتی سیل صدر عمران شہزاد کی جانب سے ارسا پلی برقی سب اسٹیشن پر ایک اور PTR یعنی ٹرانسفارمر کے اضافے کے لیے نمائندگی کی گئی تھی تاکہ ہائی وولٹیج کے مسئلے کو حل کیا جا سکے، جس پر MLA بیگالا گنیش گپتا کی جانب سے فوراً محکمہ برقی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی اور آج نئے PTR کو ارسا پلی سب اسٹیشن پر نصب کر دیا گیا ہے اور کل صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک یہاں پر اس سے جڑے تنصیبی کاموں کو انجام دیا جائے گا۔ لہٰذا ارسا پلی، NRI کالونی، آٹو نگر، حبیب نگر، بودھن روڈ و دیگر علاقوں میں بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک برقی سربراہی بند رہنے کا محکمہ برقی عہدیداروں نے اظہار کیا۔ پیرکٹ مرکزی کمیٹی انتخابات کا پرامن اہتمام، بحیثیت صدر محمد قطب الدین منتخب۔ آرمور کے شہر پیرکٹ میں مرکزی کمیٹی کے انتخابات میں صدر کی حیثیت سے محمد قطب الدین، نائب صدر محمد نعیم الدین، کلاسک مینیجر معتمد محمد یعقوب علی کا انتخاب عمل میں آیا۔ پیرکٹ مرکزی کمیٹی کے انتخابات الیکشن کمشنر سید ظفر علی، شیخ خارق الدین عبدالستار، حکمت اللہ محمد الیاس کے زیر نگرانی میں رکھا گیا۔ اس انتخابات کا اعلامیہ 2 جون کو جاری کیا گیا اور انتخابات آج بروز جمعہ 9 جون کو پیرگیٹ مسلم کمیونٹی ہال میں رکھے گئے، جس میں صدر کے لیے 6 امیدوار نے حصہ لیا اور جس میں محمد قطب الدین منتخب ہوئے، اور نائب صدر کے لیے 3 امیدوار نے حصہ لیا جس میں محمد نعیم الدین کو عوام نے منتخب کیا۔ معتمد کی حیثیت سے محمد یعقوب علی کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا۔ ان امیدواروں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹوں کی تفصیلات کا سرٹیفکیٹ حوالے کیے اور مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر محمد شفیع، محمد عطاءاللہ و دیگر نی پروسیڈنگ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نظام آباد اربن MLA بیگالا گنیش گپتا یوم تاسیس تلنگانہ دہائی تقاریب کے تحت نیو امبیڈکر بھون میں منعقدہ تلنگانہ فلاحی جشن پروگرام کی شرکت۔
शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में यौम तासिस तेलंगाना अशरा तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनाकिदा तेलंगाना फलाही जश्न में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने बीसी तबके से ताल्लुक रखने वालों को 1 लाख रुपये खर्चात के चेक हवाले किए और गोला गुरमा बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वालों को मेंढों की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए आला तरजीह दिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है और बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से फैज़याब किया जा रहा है। और इसी तरह अम्मा बड़ी स्कीम के तहत हामिला ख़वातीन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुस्तक़िल करते हुए मुफ्त तिबी मुआयना का इनेकाद अमल में लाते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसके अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वालों के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख हवाले करते हुए उनके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस कायदीन, कॉर्पोरेटर, महकमे वेलफेयर ऑफिसर्स ने शिरकत की। पीडी मेप्मा गानी सीओल गानी अंदर కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సరిగ్గా చేయలేదు. చాలా గొప్పగా జరగాలి కార్యక్రమం. నేను మొన్నటి నుంచి చెప్తానే ఉన్నా, నా మాటను మీరు పెడచెవిన పెట్టి. ఈరోజు నేను మాట్లాడడానికి రాలేదు. రోజు మేము స్టేజ్లో ఎక్కి మాట్లాడతాం. ప్రతిరోజు కూడా మేము స్టేజ్ బాబు దాన్ని కాంట్రవర్సీ చేయాలి. రోజు మేము స్టేజ్లో ఎక్కి మాట్లాడతాం. ఈరోజు నేను అందరి మాటలు విన్నామని వచ్చాను. ఈరోజు మేము ఇది చేస్తాం, మేము అది చేస్తాం, మేము ఈ ప్రభుత్వ పరంగా ఇది చేసినాం అది చేసినాం అని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉంటాం. అది కాదు, ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఆ లబ్ధిదారుల నోటనే ఈ మాటలు వినాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చాలా గొప్పగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. यौम तासिस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत एमएलए शकील आमिर ने नवीपेट मंडल नंदीगांव व कोसली देहात में कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रखा संग बुनियाद। नवीपेट मंडल नंदीगांव व कोसली देहात में यौम तासिस तेलंगाना दाही तकरीब के तहत एमएलए शकील आमिर ने कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा और नंदीगांव देहात में मुकामी सरपंच लावण्य किशन राव, एमपीटीसी ललिता संजीव, एमपीपी संगम श्रीनिवास, सविता बुचन्ना जेडपीटीसी के अलावा गोला कुरमा को दूसरे मरहले के तहत मेंढों की फ्राहमी अमल में लाई गई। बातज़ा रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने कोसली देहात में मुकामी सरपंच नीलेश, वाइस एमपीपी हरेश, तहसीलदार वीर सिंह के हमरा बेघर गरीबों में 100 प्लाटों की फ्राहमी अमल में लाई। और इसी तरह से कोसली देहात में मुनुरकापू भवन की तामीर और रेड्डी संगम भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से एमएलए शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात से गैर मुस्तफीद होने वाले कोई घर नहीं है। केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ साजिद अली, PRAE शावन, बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, साबिक़ सिंगल विंडो चेयरमैन किशोर राव व दीगर ने शिरकत की। स्कूल की పోకుండా నందిగాంలో కూడా మా సంజన్న చాలా సార్లు అయినా కూడా ఉద్యమకర్తనే వంట వార్పులు చేసినాం, ఎన్నో త్యాగాలు చేసినాం, ప్రాణ త్యాగాలు చేసినాం. చేసిన తర్వాత నందిగాంకి ఏమొచ్చింది, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నందిగాం గ్రామానికి, మీ గ్రామానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిండ్రు, ఏం పైసలు ఇచ్చిండ్రు. वेलपुर मंडल पड़गल बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल पड़गल व बालकुंडा मंडल के मुकाम पर तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए आज बालकुंडा हल्के में वाक़ 10 इलाकों में 1200 मकानात ज़ेर तामीर है, जिनमें से 800 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और मज़ीद 400 मकानात पर काम जारी है, जिसे अनक़रीब मुकम्मल करते हुए मुस्तहिक़ीन को हवाले किए जाएंगे। इसी तरह से मुर्तार देहात में आने वाले हफ्ते में इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस माह में ज़ाती ज़मीन रखने वाले गरीब अवाम को गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद हवाले करने वाले प्रोग्राम का सीएम केसीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। और रियासत में अब तक तकरीबन 2 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाकर मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को हवाले किया गया है और अनक़रीब गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मज़ीद 3 लाख मकानात देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। రకాలుగా మాట్లాడతారు. ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చినారు, 70,000 లక్షన్నరను ఇచ్చినారు. అది ఉన్న ఇల్లుకే అటొక దర్వాజా పెట్టిరు, ఇటొక దర్వాజా పెట్టిరు, బిల్లులు వేపారు.
లక్షల ఇల్లు మంజూరు చేసినామంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక ఇల్లు కనిపించదు. కేసీఆర్ మాత్రం కట్టినవి తక్కువైనా ఇగో ఈ విధంగా కనబడాలి, ఈ విధంగా కాలనీలాగా ఉండాలి, ఈ విధంగా ఏదైతే ఉందో ఇట్లా మంచిగా స్ట్రైట్గా మధ్యలో రోడ్లు వేసుకొని కాలనీలాగా ఉండాలని కేసీఆర్ గారు ఆశయం. తక్కువ కట్టినా మంచిగా కడతాం, కనిపించేటట్టు కడతాం. వాళ్ళ తిరిగా ఎవరైతే ఇప్పుడు విమర్శిస్తున్నారో, ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ తిరిగా ఒక గోడకు ఒక దర్వాజా పెట్టి ఫోటోలు కొట్టి బిల్లు వేపుకోవడం, అదే ఇల్లు ఇటొక గోడకు ఇంకో దర్వాజా పెట్టి ఇంకో డోర్ పెట్టి ఫోటోలు పెట్టి బిల్లు వేపుకోవడం, ఇటువంటి పని మాతోడు కాదు. यौम तासीस तेलंगाना दाही तकारीब के तहत मुनाकिदा तालाब फेस्टिवल प्रोग्राम में गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने की शिरकत। रियासत तेलंगाना की तश्कील की 10वीं सालगिरह तकरीब के तहत मुख्तलिफ देहात में तालाब फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाते हुए बीबीपेट मंडल के मुकाम पर बदकम्मा बोनाल जुलूस का शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कामरेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ जिले बिहार सदर M.K. मुजीबुद्दीन, मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे भी मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब रवा दवा है, जिसके तहत रियासत तेलंगाना में कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। रियासत हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सत्य ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किया और किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर ने राइतु बंधु राइतु बीमा जैसी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को राइतु बंधु स्कीम के तहत फिर एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत के अमली इक़दामात के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा है। तेलंगाना के चावल की सारी दुनिया में काफी मांग है। दूसरी तरफ केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम राइतु बीमा का भी आगाज किया है। राइतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़्फ़ी के किसानों की विरसा को 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाई स्कीमात मुतारफ की गई, जिनमें आसरा पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, राइतु बंधु राइतु बीमा, कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक, पहले प्रगति मिशन वगैरह जैसे स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह से बीबीपेट मंडल का क़याम अमल में लाने के बाद BDS से तुजलपुर तक डबल रोड के अलावा बीबीपेट बस स्टैंड से SC कॉलोनी तक सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले परिषद वाइस चेयरमैन P प्रेम कुमार, मुकामी BP बालामणि, मुत्तहिदा जिले के DCMS वाइस चेयरमैन इंदिरा सेना रेड्डी, मंडल टीआरएस पार्टी सदर C वेंकटेश गौड, CI मंडल सतह के ओहदेदारान, MPDO, तहसीलदार नरसिम्लू, मुकामी SI साई कुमार, मुकामी सरपंच तेलू लक्ष्मी, MPDC D पल्लवी, उपला साईनाथ व दिगर ने शिरकत की। అందరం కట్టమైసమ్మకు మొక్కి పెద్ద ఎత్తున మనం సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని బోనాలు బతుకమ్మలతోని అదేవిధంగా గంగపుత్రుల యొక్క ఆ వలలతోని మనం పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపుగా వచ్చి కట్టమైసమ్మ తల్లికి మొక్కుకొని అదేవిధంగా ఈద్గాకు మొక్కుకొని అన్ని దర్గాలో పూజలు చేసి ఈ గంగమ్మ తల్లికి పూజలు చేసి మనం అందరం సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని 9 ఏళ్ళు తెలంగాణ తెచ్చుకొని నిండి 10వ ఏట అడుగు పెడుతున్నాం 2వ తారీఖు నుంచి। కాబట్టి हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात के ताल्लुक से जुकल रुकन असम्बली हनुमान शेंडे ने अवाम को वाकिफ करवाया। जिले कामरेड्डी जुकल हल्का असम्बली के मदनूर मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना अशरा तकारीब के हिस्से के तौर पर सरकारी फलाई स्कीमों पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जुकल रुकन असम्बली हनुमान शेंडे ने शिरकत करते हुए हुकूमत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में आने के बाद कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में आने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाई स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया गया और इसी तरह से रियासत के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारुफ़ करदा फलाई स्कीमात की मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती और केसीआर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों की तामीर के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है और रियासत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में
नाफिज करदा फलाह स्कीमात की दूसरी रियासतें तलखीद कर रही हैं क्योंकि दीगर रियासतों में मुकिम अवाम तेलंगाना फलाह स्कीमात से मुतासर होकर तेलंगाना की स्कीमात को इनके अपने रियासतों में रूबे अमल में लाने की हुकूमत से ख्वाहिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में 6 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले MPP ZPTC मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा AMC चेयरमैन व दीगर ने शिरकत की। రేపటి రోజు ఖచ్చితంగా గిరిజనులకు బీసీలకు ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేదవారికి మైనారిటీలకు మరి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి కుటుంబంలో కనీసం 10 లక్షల ఆర్థికంగా ఉండాలి అనే ఆలోచన చేయగలిగే ఏకైక వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. తప్పకుండా మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఉంటే రేపు ఖచ్చితంగా అందరికీ 10 లక్షల బంధు ఏదైతే ఉందో అది దళిత బంధు, గిరిజన బంధు, బీసీ బంధు, మైనారిటీ బంధు, ఓసీ బంధు అందరికీ వర్తించే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తప్పకుండా మనందరి గురించి ఆలోచన చేస్తారనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికి కూడా మనవి చేస్తూ బ్రహ్మాండంగా విచ్చేసి ఇంత గొప్ప సభ విజయవంతం చేసినందుకు ముఖ్యంగా మహిళా సోదరిమణులకు మా మిత్రులకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు कामारेड्डी म्यूनसिपल के हाथ में वाक़ 6वें वार्ड सारमपल्ली पाता राजमपेट देहात में मुकामी कौंसलर अकोला रूपा रवि कुमार के ज़ेर निगरानी में तालाब फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कामारेड्डी म्यूनसिपल के हाथ में वाक़ 6वें वार्ड सारमपल्ली पाता राजमपेट देहात में मुकामी कौंसलर अलोका रूपा रवि कुमार के ज़ेर निगरानी में तालाब त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर 6वें वार्ड के कौंसलर अकुला रवि कुमार व पाता राजमपेट महिला संगम सदर बतुला चंदना ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद 90 साल मुकम्मल करते हुए 10वें साल में दाखिल होने के पेश नज़र यौम तासीस तेलंगाना शत तकारीब का 2 जून से 22 जून तक शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत आज मुख्तलिफ देहातों में तालाब फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाते हुए बतकम्मा व बुनार जुलूस भी शानदार पैमाने पर मुनाक़िद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी डायरेक्टर राजू, साबिक़ा सरपंच राजू, साबिक़ा MPTC बाल राजू के राजकुमार, नरेश, किशन, बालू, वेंकट, चंद्रम, राजैया, रंजीत, शेखर, स्वामी, नरसिम्लू, श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल में यौम फलाही तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर पोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी नसरुल्लाबाद मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना शत तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक़दा यौम फलाही तकारीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचीराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि गुजरात में 3 मरतबा रियासती वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी अपने रियासत में 750 रुपये पेंशन देते हैं, लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना की हुकूमत में ज़ईफ़ अशख़ास को 2016 रुपये पेंशन दिया जाता है और दुनिया में ना होने वाली कई फलाह स्कीमात के अलावा राइतु बंधु, राइतु बीमा जैसी स्कीमात को रूबे अमल में लाने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ పెన్షన్ ఇచ్చినటువంటి వారికి ఎంత డబ్బు అయిందంటే మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం మీద 58,000 కోట్ల రూపాయలు పెన్షన్ ఖర్చు పెట్టాం. దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత ఎక్కువ మందికి ఇచ్చేటువంటి ఒకే ఒక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు 3 సార్లు 15 ఏళ్ళు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. అక్కడేం తీస్తున్నారంటే ముసలులకు 750, భర్త చనిపోయిన 1250, వికలాంగులకు 600. మనం ఎంత ఇస్తున్నాం? వికలాంగులకు 3000 ఇస్తున్నాం, భర్త చనిపోయిన 2016 ఇస్తున్నాం. डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत मुनक़दा तेलंगाना फलाही जश्न में MLC के कविता के हमरा RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। डिचपल्ली मंडल नड़ीपल्ली मज़ाफ़ाती इलाक़े वाक़े जी कन्वेंशन हॉल तेलंगाना की दहाई तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक़दा यौम फलाही तकारीब में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता के हमरा RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कुरमा मुस्तहिक़ीन को मेंढक की अफ़ज़ाइश स्कीम के तहत दूसरे मरहले के तौर पर 75% सब्सिडी से मेंढक के यूनिटों की फ्राहमी, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के अलावा BC कॉरपोरेशन बैन मजहबी शादी करने वालों को MLC के कविता के हमरा चेकों की फ्राहमी
फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कुल 60 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और हर एक तालिब इल्म को एक हफ्ते में चिकन, अंडा, मुतवाज़न ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा तालीम के दरकार किताबें, शूज़, मलबूसात के लिए हर साल हुकूमत 1,25,000 रुपये रियासती हुकूमत खर्च करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमएलसी के कविता, साबिक़ा एमएलसी वीजी गौड गंगाधर, जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिले परिषद मनसूबाबंदी मेंबर धरपल्ली, ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन, मुतहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, तमाम मंडलों के MPP, ZPTCs व मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा MPTC सोसाइटी चेयरमैन, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళకి ఇస్తే ప్రజలు సంతోషపడతారు, దేవుడు ఆశిస్తున్నారు. అదేవిధంగా 11,000 మందికి దళిత వస్తుంది. దానిలో కూడా దయచేసి యంగ్ చదువుకున్న పిల్లలు దళితులు ఉంటే వారికి ఎక్కడికి మనం ఆ పేరు ఇవ్వండి, తప్పని చేపట్టిస్తాము తెలియజేస్తూ ఇంకా చాలా సమయం కూడా ఏర్పడుతుంది, ప్రజా సమయం వచ్చింది. మరి మీ అందరికీ పేరు పేరున ఎన్నో ఇప్పుడు 2 ప్రజలకి మన కులాల వాళ్ళకు దైవం పంపిణీ చేద్దాం. ఆ 2 ప్రజలు కూడా రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు ZPTC గారు, డిజిటల్ ZPTC ఇందిరా లక్ష్మీ నరసింహ గారు, ZPTC భోపాల్ కమలా నరేష్ గారు, ZPTC ఇంద్రవాయి సుమనారెడ్డి గారు। होटल पिस्ता शेफ्स का डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अजीम शान पैमाने पर इफ्तिताह। तमाम कॉरपोरेटर्स ने प्रोप्राइटर होटल मोहम्मद नसीर मोहम्मद अहमद को दी मुबारकबाद। आज बाद नमाज जुमा खल्ब शहर नज़द मालापल्ली चौरास्ता होटल पिस्ता शेफ्स का डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों अजीम शान इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में शकील अहमद फाजल, सदर मजलिस निज़ामाबाद, मोहम्मद रियाज अहमद, साबिक़ फ्लोर लीडर एजाज हुसैन, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद अरशद पाशा, मोहम्मद शहबाज, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल गफूर मुकीम, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मीर परवेज़ अली, MA अजीज़ राही व दीगर ने शिरकत की। प्रोप्राइटर होटल पिस्ता शेफ्स सीनियर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर मोहम्मद अहमद, यूथ लीडर मजलिस ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। होटल शेफ्स के शानदार आगाज़ पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों और नौजवानों ने मोहम्मद नसीर को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अहमद ने बताया कि तहारी बिरयानी के शौकीन हज़रात होटल पिस्ता शेफ्स की शानदार खिदमत से इस्तिफादा हासिल करने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। लजीज जायकेदार तहारी बिरयानी रोज़ाना सुबह से रात देर गए तक ग्राहकों के लिए तैयार है। इसके अलावा जुमा के दिन स्पेशल बगार दालचा तैयार मिलेगा। मोहम्मद अहमद ने बताया कि अनकरीब ग्राहकों के लिए होटल में चाइनीज़, तंदूरी, खुलाई ग़िज़ाई अशिया भी सरबराह की जाएंगी। मोहम्मद अहमद ने अवामना से ख्वाहिश की कि वो अपनी फैमिली के हमरा होटल पिस्ता शेफ्स पर तशरीफ़ लाते हुए फैमिली सेक्शन में बैठकर तहारी बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो। निज़ामाबाद जर्नलिस्टों को मकान के लिए अराजी की फ्राहमी से मुताल्लिक़ा अराजी पर MLC के कविता ने भूमि पूजा अंजाम दी। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक में जर्नलिस्ट अहम तरीन किरदार किए हैं, इसीलिए हुकूमत तेलंगाना अहल मुस्तहिक़ जर्नलिस्टों को मकान के लिए अराजी देने के लिए आगे आने का इजहार किया। MLC के कविता ने कहा कि कई अरसे से कई जर्नलिस्टों को ज़ाती मकान ना होने की वजह से किराए के मकानात में सुकूनत पजीर होने की याद दहानी करवाई। बातज़ा MLC के कविता ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करते हुए गुंडाराव मुस्तक़र पर जर्नलिस्ट कॉलोनी की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, MLAs बाजरेड्डी गोवर्धन, बिगाला गणेश गुप्ता, MLC वीजी गौड, मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। కూడా ఉద్యమ సందర్భం నుంచి మొదలు పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా తెలంగాణ ప్రజలను జాగరూకపరుస్తూ వారికి మంచి విషయాల్ని వివరించి చెప్పేటటువంటి మా కలం కార్మికులందరినీ కూడా నిరంతరం గౌరవిస్తూ వస్తున్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ జర్నలిస్టుల పక్షపాతిగా ఉన్నటువంటి పార్టీ. అందుకే స్పెషల్గా మీడియా అకాడమీ చైర్మన్గా కూడా సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ అల్లం నారాయణ గారికి ఇచ్చి వారిని గౌరవించుకోవడం, వారి ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి పాటుపడుతున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం, ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. జర్నలిస్టుల వెల్ఫేర్ కోసం ఫండ్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రభుత్వం కూడా కేవలం
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది. అదేవిధంగా అనేక మంది జర్నలిస్టు మిత్రులు వారి కుటుంబాలు వారు ఇబ్బంది పడకుండా జర్నలిస్టులకు ఏమన్నా అయితే సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేసి ఇన్సూరెన్స్తో పాటు పిల్లల చదువులతో పాటు జర్నలిస్టు మిత్రులకు रियासत तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का ज़िले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। यौम तासीस तेलंगाना अशरत तकारीब के तहत यौम फलाही प्रोग्राम का आर्मूर शहर के क्षत्रिय फंक्शन हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए जलसे आम से ज़िले बिहार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती है। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात की दीगर रियासतें तलखीद करने का इजहार किया। తోబుట్టువులకు అక్క చెల్లెలకు అమ్మలకు అన్న తమ్ములకు పేరు పేరున అదే విధంగా మా మహిళా సోదరిమణులకు వివోఏలకు సిఏలకు మహిళా అధ్యక్షురాలకు అందరికీ కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమం పాల్గొన్నటువంటి ఆశా వర్కర్లకు అదేవిధంగా ఏఎన్ఎంలకు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి చేతులెత్తి హృదయపూర్వక పేరు చెప్పిన వాళ్ళకు చెప్పని వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నాడు సంక్షోభం నేడు సంక్షేమం, ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం, ప్రతి కంట్లో ఆనందం. ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా మహిళా సోదరుమణులను इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले रियासती वज़ीर आला केसीआर कामारेड्डी नसरुल्लाबाद में तेलंगाना यौम तासीस जश्न तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। तहरीक तेलंगाना व तरक्की तेलंगाना में सहाफियों का अहम रोल। गुंडाराम में सहाफियों के लिए मुख्तस करदा अराजी पर एमएलसी के कविता एमएलए वाजपेयी गोवर्धन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया कामों का आगाज। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की दिलचस्पी के सबब अखलती इलाकों में बरक़ी सरबराही का मसला हुआ खत्म। वादे के मुताबिक अंदरून 3 यौम अरसापली बरक़ी सब स्टेशन पर मस्जिद पीटीआर का इजाफा। तंसीबी कामों का आज से हुआ आगाज। बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इन इलाकों में बरक़ी सरबराही रहेगी बंद। सीएम केसीआर की क़यादत में 10 इलाकों में आई तरक्की। डिचपली में मुनाक़िदा तेलंगाना यौम तासीस जश्न से एमएलसी के कविता का खिताब। बीआरएस दौरे हुकूमत में ही अवाम की सहूलत में हुआ इजाफा। हर फर्द के लिए सरकारी स्कीमात मौजूद। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का तेलंगाना जश्न तकरीब से खिताब। तेलंगाना में ऐसा कोई गांव नहीं जहां तक बीआरएस की स्कीमात ना पहुंची हो और ऐसा कोई घर नहीं जिसने इस स्कीमात से इस्तिफादा हासिल ना किया हो। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।